Welcome to you in 8th lecture of haloalkanes and haloarenes. हम लोगों ने 7th lecture में पढ़ा था preparation of haloalkanes. तो कुछ methods हम लोगों ने पढ़ रखे थे और further methods these are given. First by Finkelstein reaction, next by Schwarz reaction, next by alkenes and then by alkynes. तो सबसे पहले देखते हैं by Finkelstein reaction and Schwarz reaction. यहाँ पर एक टॉपिक है हमारे पास में preparation of haloalkanes by halogen exchange reactions. Exchange reactions clear? ये halogen exchange reactions, there are two types. One is the Finkelstein reaction and next is the Schwarz reaction. दो पहले वाले मेथड से हम लोग आयोडाइड बनाते हैं और सेकंड मेथड से हम लोग फ्लोराइड्स बनाते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको आयोडाइड्स बनाने के लिए हम लोग एल्केन्स वगैरह से बनाते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शंस। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा। When alkyl fluoride or alkyl bromide is treated with sodium iodide, then alkyl iodide is obtained. Like this, you react methyl bromide with sodium iodide, then you know what happens? This compound is formed. This bromide is replaced by iodine. तो हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज कर दिया गया। In the same way, you take an ethyl chloride, then your result will be CS3CS2I, that is ethyl iodide. Clear? Hence, chlorine is replaced by iodine. You know, in the case of ions, iodide ion is more reactive than other ions. Actually, में जो iodide ion है, it is more reactive. Clear? So iodide ion is more reactive, so it replaces to the bromine and chlorine. अब में फ्लोराइड के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम, ठीक, वो कैसे बनाएंगे? उसको हम लोग इस मेथड से नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। So for preparation of fluorides, we take another method, and that is the Schwarz method. इसमें क्या है? When an alkyl halide is reacted or reacts with metallic fluorides. Metallic fluorides like silver fluoride,
mercurius fluoride, antimony fluoride, etc. Then alkyl fluorides are obtained. Clear? This like this. When your methyl bromide react with silver fluoride, then methyl fluoride is obtained in this way. Clear? In the same way, when you react ethyl chloride with mercurius fluoride, then it gives ethyl fluoride and mercurius chloride. Clear? In the same way, you react this compound. This is a dihalide with antimony trifluoride. Then what happens? Chlorine atoms are replaced by fluorine, and it gives also antimony trichloride. These chlorine atoms are replaced by fluorine atoms. तो जब कभी भी हम लोग किसी भी मेटालिक फ्लोराइड को किसी भी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक, फ्लोरीन के द्वारा. Now, haloalkanes by alkenes. Clear? Alkenes means double bonded hydrocarbons. Clear? यहाँ ये aliphatic hydrocarbons है. There are three cases. पहला है first number, addition of alkane with hydrogen halide. क्लियर? जो भी अल्केन है उसके हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड से एडिशन रिएक्शन करेंगे. पहला तो यही है आपका, इसमें आपको कंपाउंड मिलेगा. क्लियर हो गया? दूसरा क्या है, आइए वो देखते हैं. एडिशन ऑफ alkene with halogen. And next है halogenation of allyl halide. There is allylic halogenation. आइए इन तीनों को देखते हैं अलग अलग. First we go addition of alkene with alkene and hydrogen halide. Clear? It is very simple reaction. Like this is, you react like HCl. There one bond, pi bond is broken, and one valency of each carbon satisfied by hydrogen and chlorine separately in this way. Then one hydrogen is added with this carbon and one chlorine on this carbon on breaking pi bond. Clear? ये तो बहुत इजी रिएक्शन. यहां पर ये आपका जो अल्कीन है, इट इज अ सिमेट्रिक अल्कीन.
क्लियर? सिमेट्रिक एल्कीन है. सिमेट्रिक मींस जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं बोथ हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. कभी ऐसा कंपाउंड हो जैसे ये है, यहां पर भी सिमेट्री है आपकी, हम लोग HCl से ऐड कर रहे हैं तो एक यहां जुड़ जाएगा H, एक Cl या आप Cl यहां जोड़ें कंपाउंड सेम बनेगा. बट यदि कंपाउंड मान लीजिए इस फॉर्म में आपका है, अब प्रॉब्लम है, हम लोग क्लोरीन को यहां ऐड करेंगे, H को यहां, तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा और यहां ऐड करेंगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन. तो व्हाट विल बी रिजल्ट? यहां पर एक रूल लगता है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इट इज मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक, मार्कोनी कॉफ्स रूल है. ये क्या है, ये वो देखते हैं. इसमें कहा गया है in addition of unsaturated and unsymmetric वहां होगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट होंगे. unsymmetric hydrocarbon, that is alkene and alkyne. Clear? More negative part of reagent is added to a carbon atom having least number of hydrogen atoms. ये बात कही गई. देखें इसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली देखें हम लोग. It is a unsaturated and unsymmetric because double bonded carbon atoms have different hydrogen atoms. You react with HBr. You know HBr is a polar compound. HCl is a polar compound. Where chlorine, bromine, iodine are more electronegative atom. So what will be there? It becomes polar due to slightly displacement of shared electron pair towards halogen atom. The slightly negative, slightly positive होगा. अब क्वेश्चन उठता है हमारे पास में, there are 2 chances. One chance is there. एक चांस तो ये कि पाई बॉन्ड ब्रोकन होगा तो ब्रोमीन को हम लोग यहां ऐड करें. क्लियर? एंड दिस कंपाउंड इज 2-bromo propane. एंड अनदर चांस इज कि हम लोग ब्रोमीन को यहां ऐड करें और हाइड्रोजन एटम को यहां भेजें. हालांकि आप पढ़ चुके हैं 11th में. It gives 1-bromo propane. Remember, according to Markovnikov's rule, negative part is added with a carbon when number of hydrogen atoms is least. So bromine should be added on this carbon. So it is a major product.
and it is a minor product. ऐसा क्यों होता है? It is due to stability of intermediate compounds. आपने पढ़ा हुआ है जहां फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन बनते हैं वहां रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो है 3 degrees more stable than 2 degrees more stable than 1 degree. वो इसका रीजन है जो अपने मैकेनिज्म है 11th में जान चुके हैं. तो यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से their product will be this, not this. क्लियर? यहीं पर एक और वर्ड है आपका एंटी-मार्कोनिकॉफ. रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. खराश कहते हैं इसको. प्रोनाउंसिएशन में हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं खराश. ये क्या है? इसी रिएक्शन को हम लोग किसी एरोमेटिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करें, then you know product will be this, not this. It means reaction will be contrary to Markovnikov's rule. That is, according to this rule, in presence of aromatic peroxide, addition reaction of alkene with HBr occurs contrary to Markovnikov rule. मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट रिएक्शन होने लगेगा. ये बात कही गई यहां पर. एरोमेटिक पेरोक्साइड का बेस्ट एग्जांपल है बेंजोइल पेरोक्साइड. बेंजोइल पेरोक्साइड इसका जो एग्जांपल है आपका दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड. इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लें. It is slightly negative positive part when this reaction is done in presence of benzoyl peroxide. Then आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू Markovnikov's rule bromine should go with this carbon, but in the presence of this bromine goes with this carbon and product is 1 bromo propane, not 2 bromo propane. यानी यहां Markovnikov रूल के अगेंस्ट रिएक्शन होने लगेगा, इसीलिए कहा गया एंटी मार्कोनिकॉफ. क्लियर? यहां पर जो है जो आपका H है, ठीक है ना, ठीक, वो यहां आ जाएगा. जो मोर नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन के पास चला जाएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट गोज विद कार्बन व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स, मगर यहाँ जस्ट रिवर्स होगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, दिस इज अ फॉर्मूला। This is the benzoyl peroxide. Clear? Now we go. Another reaction. By addition of alkene with halogen. हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो एंटी मोरकोनी ऑफ इफेक्ट है वो केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर अप्लाई होता है, नॉट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। ये मेमोरी में रखेगा इस बात। यहां पर जो रिजल्ट होगा आपका उसमें क्या बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Hence weak dihalides are obtained। और ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, व्हाट्स आर वीक डाइहालाइड्स, क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, वीडियो नंबर 2 में आपका मिलेगा। एग्जाम्पल, दिस इज you react with chlorine, then what happens? 1 chlorine goes with each carbon atom of double bonded carbons. Clear? It is a weak dihalides, जहाँ नियरेस्ट कार्बन के पास हैलोजन एटम्स होते हैं। Now we go next reaction. By allylic halogenation। एलाइलिक क्या होते हैं वो देखें आप, हम लोग पढ़ भी चुके हैं इससे पहले। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? नेक्स्ट कार्बन टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, दिस इज एलाइलिक कार्बन। यहां पर हैलोजन को आना। अब आपको मालूम है यहां पर जो है हम जब रिएक्शन कराते हैं हैलोजन का, क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होता है कॉमनली, बट व्हेन यू रिएक्ट हैलोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, then there are no addition reaction, there will be substitution reaction at a very high temperature, like at 773 degrees centigrade, sorry Kelvin. At this temperature, you know, when you react chlorine, then this hydrogen, allylic hydrogen, is replaced. In this. Clear? In the same way, this reaction. Clear? एलाइलिक क्लोरीनेशन के लिए हम लोग क्लोरीन के स्थान पर जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेक सल्फ्यूरिल क्लोराइड, जहां सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी आपकी निकलती है। और इस रिएक्शन के लिए ब्रोमीन की जगह पर जो है हम लोग यहाँ पर NBS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इट्स नेम इज नाइट्रोजन ब्रोमो सक्सिनामाइड। Its formula is this is. So, ये NBS है, एन कंडीशन है, इसको कहते हैं लोग, ठीक है ना। ब्रोमोसक्सिनामाइड के नाम से जाना जाता है, और नाम से पहले हम लोग एन लिखते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड।
इसकी जगह इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, but alkynes, यहां होगा एडिशन विथ HX। यहां भी आपके ध्यान रखिएगा डाइहैलाइड्स बनेंगे एंड देयर विल बी जेम डाइहैलाइड्स आर ऑब्टेन्ड। For example, you take ethyne, now react with bromine, to it gives एक बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास, ठीक। बल्कि आप यहां पर जिसकी जगह HBr HX लेना है आपको, यू टेक HBr, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इज, यहां HCl का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोथ कार्बन हैव सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कहीं भी कुछ जोड़िए। नाउ फर्दर अब यहां पर मार्कोनी कब शुरू लग जाएगा, बिकॉज दिस कार्बन हैज ओनली वन हाइड्रोजन, दिस हैव टू हाइड्रोजन, सो ब्रोमीन गोज विद दिस कार्बन, so their result is CH3CHBr2 and its name is ethylidene dibromide, two bromine atoms with same carbon atom, so it is called gem dihalide। clear? यहां पर एक बात चलिए, ये आपका ध्यान रखेंगे जेम डाइहैलाइड से These are preparation of haloalkanes and haloarenes के लोग पढ़ रहे थे, तो अभी केवल हम लोगों ने haloalkanes पढ़े हैं वीडियो नंबर 7 में, वीडियो नंबर 8 में। अब क्या रहेगा प्रिपरेशन ऑफ haloarenes, वो हम लोग जानेंगे वीडियो नंबर 9 में। ओके, तब तक इसको आप समझें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।